ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दूसरे सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहले सेशन में हमने देखा कि DHCP is one essential and important service on the internet, on the network primarily, and whenever we enable Wi-Fi device, and our aim is to get our device get an IP address. So all this procedure actually टेक्स्ट में तो डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन यहाँ एक एनिमेशन की मदद से भी डिस्क्राइब किया गया है। So a laptop which needs the IP address, it primarily prepare a DHCP and it send the DHCP packet over the network. So this is the protocol stack कि जिसके अंदर से जो है वो ये गुजरता है। ये प्रोटोकॉल स्टैक थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मुख्तलिफ सर्विस जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके अपने प्रोटोकॉल स्टैक्स होते हैं, जिसमें वो मेंशन करती हैं कि एप्लीकेशन लेवल पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा करेंगे। आमतौर पे आईपी यूज़ होता है, नेटवर्क लेयर पे इथरनेट 802.11 में भी वाईफाई है या कनेक्टेड इथरनेट है, वायर्ड इथरनेट है। एंड सिमिलरली फाई इज आल्सो द फिजिकल मीडियम जो कनेक्ट करता है। सो इन दिस वे जो है वो एक DHCP। Okay, we start where we left. Actually, there is some problem on the internet today, and we are facing some outage here as well. So DHCP request is encapsulated in UDP, and afterwards it is then encapsulated in IP, and then encapsulated in 802.11. So let's say Ethernet for this case, and then it is sent over the network, and the destination is all ones on the network. So it reaches to the DHCP server. Once it reaches to the DHCP server, then DHCP uh, communication back to the client, and this way one pass of communication is completed. That means the two-way communication is completed. So this happens जो हमने टाइमलाइन डायग्राम की मदद से सीखा था कि किस तरीके से जो है वो जो मैसेज कम्युनिकेशन होती है वो कैसे होती है। This is the Wireshark output or dump, in which a request is outlined on the left side and the reply is outlined on the right side. So from this dump, we can see the different components of the request, in which the client primarily announces its IP address as 0. That means it does not. एक मिनट दीजिएगा। Okay, so on the left side we have the request, and in this request we can see the client IP address, and similarly on the right we see the reply, in which the client IP address is offered. So this dump has to be primarily in four different primarily parts, in which
जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करे और उसके बाद जो है वो उसको उसका रिस्पांस मिले। जैसे हमने टाइमलाइन में देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्राइमरली लोकेट्स द DHCP and then DHCP primarily offer, then it accepts the offer and then finally get the acknowledgement. So for each pass there should be a separate term, whereas here it only shows the request and reply, because the request and reply come on the communication number 3 and on the communication number 4. तो हम उसके साथ इसको मैच करके प्राइमरीली जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है डिफरेंट फील्ड्स जो है वो आपस में अलाइन होते हैं। Then we now move towards a scenario, a use case in which the ISP, the internet service provider, get an IP address with the /20 net mask /20 subnet mask, and then it primarily distribute that IP, converts to the IP range and then distribute to different organizations. So ISP primarily take one IP address and then convert this IP address to subnets through classless interdomain routing, that means variable subnet mask, and then distribute those IP addresses in the range to different organizations. Then organization can use those 23 to further make subnets inside or use the same as a single subnet as well. इसको एक डायग्राम की सूरत में भी दिखाया है, लेकिन उस डायग्राम में जाने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि जो IP एड्रेस ISP को मिला है उसमें अगर आप देखिए तो जो सबनेट मास्क यूज हुआ है वो /20 है, और उसकी जो 3 बिट्स हैं वो ISP ने यूज़ की हैं, और उन 3 बिट्स की मदद से उसने जो है वो 8 सबनेट जो है वो बनाए, और उन 8 सबनेट्स को 8 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Okay, so a map or a cloud diagram of this setup is shown here. That from internet, the ISP acquired a IP address, and this IP address is now configured at ISP, और ISP जो है वो उसने इसको प्राइमरीली राउट को एडवर्टाइज किया है इंटरनेट को कि any traffic for this IP address or this combination should be sent to this link. Okay, so then this ISP broke its address range into 8 subnets and distribute to different organizations. So this is one example. Similarly, there may be another ISP which is using a different IP address and a different subnet mask for its own scheme. अब इसने जो इसमें एक एग्जांपल दी है वो ये है कि one of the subnet can be moved to the ISP, and then this ISP advertise another IP address which is assigned to, let's say, organization number 2 is moved. Then this IP address is advertised here that if there is any traffic for organization 3, you can send through this link. Then it is possible to move one organization from one ISP to another ISP. जो आमतौर पे होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना IP एड्रेस स्कीम को चेंज नहीं करना चाहती, लेकिन अपना ISP चेंज करना चाहती। ये कॉमन सिनेरियो है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज हो जाती हैं,
और इसी तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो जाती हैं टू फॉर्म ए बिगर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए जो है वो ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। ओके, इस डायग्राम में, इस स्लाइड में जो डायग्राम शो की गई है उसमें अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन 1 को ये दूसरा आईएसपी जो है, आईएसपी 2 जो है, इसमें मूव कर दिया है। और अब इस आईएसपी से जो इन्होंने कनेक्शन लिया है उसमें ये अपना इंटरनल स्कीम को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, और इस आईएसपी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो है अपना एक नया जो एड्रेस है वो इसको एडवर्टाइज कर दें कि इसकी ट्रैफिक जो है वो यहाँ आ जाए। तो इस सूरत में इसकी ट्रैफिक जो है वो प्राइमरीली, चूँकि ये मोर स्पेसिफिक है 20 की बनिस्बत ये मोर स्पेसिफिक है, तो पहले जो है वो मोर स्पेसिफिक राउट जो है वो ट्राई होगा, तो जो नेटवर्क ट्रैफिक होगी वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। So this is explained in the book as well. So how the IP addresses are acquired? IP addresses are acquired through the Internet Corporation for assigned names and numbers, and it also has subsidiaries. Okay, इसमें नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन चूँकि बहुत फेमस प्राइमरली एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि जो एक ही आईपी एड्रेस के ऊपर मल्टीपल इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज प्राइमरली अनदर एरिया जिसको यहाँ पे जो है वो हाईलाइट किया गया है या यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये बहुत आसान और सिंपल है। इसमें एक राउटर के ऊपर पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर होता है, और इसी तरीके से जो इंटरनल है, इंटरनल जो है वो कंपनी अपना एक प्राइवेट आईपी एड्रेस पूल जो है वो रन करता है। ये एक फेमस कॉन्फ़िगरेशन है जो आमतौर पे तमाम जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कंपनीज हैं वो इसको यूज़ करती हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें प्राइमरीली जो राउटर है या जो नेट सर्वर है उसके ऊपर एक पोर्ट मैपिंग जो है वो हर जो होस्ट है उसके अगेंस्ट जो है वो बनाई जाती है, और उस पोर्ट मैपिंग के थ्रू जो पैकेट है उसके अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो चेंज कर दिया जाता है। तो जो सोर्स एड्रेस चेंज कर दिया जाता है। मैं यहाँ लिखना चाहूँगा सोर्स एड्रेस, क्योंकि एक्चुअल सोर्स अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये वाला सिस्टम है तो इसका आईपी इंटरनेट पे जाना चाहिए एज ए सोर्स एड्रेस, लेकिन इसका रिप्लेस करके जो इसका इंटरफेस है इसका सोर्स एड्रेस दे दिया जाता है, और पोर्ट नंबर जो है वो यहाँ से एक नई स्पेसिफाई कर दी जाती है, और इस तरीके से ये फंक्शन करता है। और इस चीज़ को नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें पोर्ट नंबर के साथ दिखाया है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि ये किस तरीके से ये फंक्शन करता है, और यहाँ पे इसका मेथड बताया है कि अगर आप सपोज करें कि ये होस्ट है और ये होस्ट जो है ये एक डेस्टिनेशन इंटरनेट पे है, एक वेब सर्वर है, उस वेब सर्वर पे ये कनेक्ट करना चाह रहा है, या उस वेब सर्वर को ये उसके इंफॉर्मेशन को गेट करना चाह रहा है, तो ये जब अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा तो उस इंफॉर्मेशन को प्राइमरीली जो सोर्स एड्रेस है वो ये जो राउटर का आउटर इंटरफेस है ये इसमें अपडेट कर दिया जाएगा, और एक पोर्ट नंबर मैप कर दी जाएगी। ये पोर्ट नंबर जो है ये उस होस्ट के साथ मैप हो जाएगी, तो इस तरीके से नेट को पता होगा कि अब जो इसका रिस्पांस आएगा वो वापस कैसे जो है वो भेजना है। सो दिस इज़ ए सिंपल ट्रांसलेशन, जिसमें अगर हम इसको दोबारा से एक दफ़ा देखें कि ये कम्युनिकेशन जो होस्ट करेगा इसमें होस्ट अपना आईपी एड्रेस देगा, और ये आईपी एड्रेस जो है ये प्राइमरीली यहाँ पे जो नेट सर्वर है ये इसको रिप्लेस कर देगा पब्लिक डोमेन आईपी के साथ, या जो आईएसपी ने उसको आईपी दिया है ये इसके साथ रिप्लेस कर देगा,
और एक नई पोर्ट मैपिंग जो है वो उस आईपी एड्रेस के साथ और पोर्ट के साथ मैप बाइंडिंग कर देगा कि वैन साइड में ये है और लैंड साइड में ये है। जब रिस्पॉन्स आएगा तो इस रिस्पॉन्स को इस मैपिंग के थ्रू जो है वो फिर इसकी डेस्टिनेशन जो है वो रिप्लेस कर देगा और डेस्टिनेशन में फिर इस आईपी और इस पोर्ट पे वो इंफॉर्मेशन जो है वो चले जाएगी। सिंपल सा एक सेटअप है और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की सर्विस है और ऑलमोस्ट तमाम जो नेटवर्क्स हैं वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर यहाँ कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन वी मूव बैक। अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि हम ये जो सबसेक्शन है इसको हम कंप्लीट कर पाएं। ओके, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 60,000 साइमल्टेनियस कनेक्शन। अगरचे वो लैन में आमतौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। 60,000 इज अ बिग नंबर, बट एनी हो इट्स ए थोरेटिकल लिमिट। थोड़ा नेट राउटर का मजीद थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कुछ चीज़ों के बारे में कि कभी आपने कोई ऐसी सर्विस जो लोकली इंटरनली आपने इस्टेब्लिश करनी है, यानी ये एक सर्वर इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो इस सर्वर को इंटरनेट पे कैसे पब्लिश करें ताकि जो है वो बाहर से क्लाइंट जो है वो इसको, जो एक्सटर्नल क्लाइंट्स हैं वो इसको एक्सेस कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक डेस्कटॉप सिस्टम है और ऑफिस का सिस्टम है, लेकिन उस पर कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आपको, जिस पे काम करना आपको घर से पड़ सकता है, तो आप उस डेस्कटॉप पे कैसे एक्सेस करेंगे ताकि आप उसी डेस्कटॉप पे काम करें। क्योंकि कंपनी पॉलिसी ये जो है वो इन्फोर्स करती है कि आप ऑफिस की इंफॉर्मेशन घर नहीं ले जा सकते, लेकिन आप कम से कम घर से काम कर सकते हैं उसके ऊपर। सो दिस इज सेटअप इन विच और नेट कैन बी यूज। अगर ये थोड़ा सा पुराना सेटअप, इट्स नॉट फिजिबल व्हेन यू आर यूजिंग फायरवॉल, और फायरवॉल के अंदर जो आप पोर्ट रिडायरेक्शन करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू नेट, क्योंकि इसमें फिर आप जो है वो सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। बट एनी हाउ फायरवॉल फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन आइसोलेशन एज वेल। तो ये डिपेंड करेगा अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर और जो नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर कि क्या उन्होंने डिप्लॉयमेंट की हुई है, या वो चाहते भी हैं ऐसा सेटअप एस्टेब्लिश करना या नहीं। थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो उसमें प्राइमरीली एक्सप्लेन भी किया है कि ये कैसे होगा। थोड़ा इसको हम स्किप करना चाह रहे हैं, लेकिन स्काइप जो है वो इसको कैसे यूज़ करता है। स्काइप जो है वो इसको रिलेइंग के तौर पे यूज़ करता है। स्काइप प्राइमरीली एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा एक और दूसरे क्लाइंट से इस्टेब्लिश करेगा और उसके बाद इनको रिले कर देगा। रिले का मतलब ये है कि उनको आपस में मिला देगा। जब वो जो रिलेइंग इस्टेब्लिश हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो व्हाट्सएप पे क्लाइंट दूसरे क्लाइंट से बात कर सकेगा, जो है वो कम्युनिकेट कर सकेगा। इसके बाद ICMP और IPv6 है। इसके बारे में जो ICMP है ये एरर मैसेजेस को ट्रेस करने के लिए और इसके साथ साथ ट्रेस राउट का एक फंक्शन होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके एरर्स होते हैं, इसके मैसेज टाइप्स होते हैं। और IPv6 जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लॉन्ग ड्यू है, बहुत थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुई है, लेकिन IPv6 इम्प्लीमेंटेशन इज मोर सिंपल एज कंपेयर टू IPv4। तो सबसे पहले ICMP की बात करते हैं और थोड़ा क्विकली हम चलेंगे। इसमें टाइप और कोड होते हैं और आमतौर पे जो यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे आप पिंग यूज़ करते हैं, इसमें रिप्लाई और इको रिक्वेस्ट है। और अगर फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन होस्ट जो है वो रीचेबल नहीं है तो उस सूरत में प्राइमरीली हमारे पास जो है वो क्या कोड जो है वो आता है। और बाज़ दफ़ा अगर रिस्ट्रिक्शन है नेटवर्क पे तो TTL एक्सपायर भी हमारे पास जो है वो, ये जनरली ये चीज़ें जो है ये इससे कॉमनली एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फेमिलियर होता है और इन चीज़ों को वो अपनी ट्रबल शूटिंग में प्राइमरीली यूज़ कर रहा होता है। और इसके अलावा
एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल्स भी ICMP को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। मैकेनिज्म बहुत आसान है, 3 प्रोब्स यूज करता है और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट हॉप बढ़ा देता है और इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है और इसकी बेसिस पे वो फिर स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेवलप करता है। IPv6 की बात करते हैं, ये हमारा लास्ट जो सेक्शन है कि IPv6 जो है उसकी तरफ जो मोटिवेशन है वो चूँकि IPv4 में एड्रेसेस की तादाद कम है, पब्लिक एड्रेस तमाम डिवाइसेस को नहीं दे सकते हैं, अगरचे और बहुत सारे मैकेनिज्म डेवलप किए गए हैं, लेकिन जो पब्लिक IP एड्रेस होता है उसको प्राइमरीली यूज़ करना, उसका जो है वो इम्प्लीमेंट करना वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू जो कॉम्प्लेक्स सर्वर्स और सिस्टम्स और सर्विसेज होती हैं उनको मैनेज करने के लिए। हेडर में ड्रास्टिकली चेंज है और बहुत ही सिंप्लीफाइड हेडर है एंड इट डज नॉट अलो द फ्रेगमेंटेशन, जबकि TCP में जो है वो सॉरी IPv4 में फ्रेगमेंटेशन इज द एसेंशियल और कोर फंक्शन। अगर आप इसका हेडर देखें तो बहुत सिंप्लीफाइड हेडर है, वर्जन स्पेसिफाई होता है, ऑब्वियसली यहाँ 6 लिखा होगा, इसके बाद प्रायोरिटी है और प्रायोरिटी के बाद इसका फ्लो लेवल है और आइडेंटिफाई डेटाग्राम्स इन ए सेम फ्लो और इन द कंसेप्ट ऑफ फ्लो इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इज द नेक्स्ट हेडर, सो वेरी सिंप्लीफाइड हेडर। और इसमें अगर आप देखें कि जो है वो सोर्स एड्रेस और जो डेस्टिनेशन एड्रेस है इनकी जो है वो 32 बिट नहीं है, 128 बिट्स है और इसी तरीके से इसमें डेटा चेकसम इसमें रिमूव्ड इंटायरली टू रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम एट ईच होप, ऑप्शंस अलाउड बट आउटसाइड ऑफ हेडर एंड आल्सो देयर इज ICMP जो V6, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर उन्होंने थोड़ा सा बता दिया है और ये बता दिया है कि IPv4 पेलोड के अंदर जो है वो IPv6 को यूज या इनकैप्सुलेट किया जा सकता है ताकि एग्जिस्टिंग जो IPv4 नेटवर्क है उसके अंदर IPv6 को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। तो बेसिकली ये IPv4 यानी IP4 का ये पैकेट है जिसको हम डेटाग्राम कहते हैं और इसके अंदर अगर आप देखें तो जो IPv4 का पेलोड है यानी जो डेटा का जो स्पेस है उसमें जो है वो IPv6 का जो डेटाग्राम है उसको यूज़ किया गया है। इसी कंसेप्ट को यूज़ किए करके एक टनल बनाया जाता है और अगर आप ये देखें कि अगर हम IPv6 नेटवर्क पे काम कर रहे हैं और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी IPv6 है और दरमियान में कहीं पे IPv4 आता है तो IPv6 के जो डेटाग्राम है वो IPv4 के जो पैकेट है उसके अंदर डेटाग्राम है उसके अंदर चले जाते हैं और इस तरीके से जो IPv6 है उसके लिए ये दोनों राउटर जो है ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं या यूँ समझे कि वर्चुअली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो फिजिकल व्यू में तो वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं लेकिन लॉजिकल व्यू में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी किया है उसने कि ये किस तरीके से होगा कि जो है वो इनकैप्सुलेशन होगी और उसके बाद रैपर जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो IPv4 का रैपर है, अंदर टॉफी IPv6 की है और उसको बाद में फिर रैपर को रिमूव करके दोबारा से जो है वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको रिकवर किया है। ओके, द अडॉप्शन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस और उस वक्त जो V6 में यानी जो किताब का वर्जन 6 है उसमें उन्होंने 20 इयर्स एंड काउंटिंग जो है वो देयर आर इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो लेफ्ट साइड में जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। आप इन स्लाइड से गो थ्रू कीजिएगा, ये 74 तक हम पहुँचे हैं और इसमें कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम राउटिंग एल्गोरिदम्स जो हैं उनको देखेंगे और नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी 4 सेशन पे होगी ताकि हम ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट कर लें। कुछ एग्जांपल्स भी है इसमें, तो नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके आप लोगों को आना होगा। स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन
आज के इस सेशन के हवाले से। हनीफ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मुनीब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। साथ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्विज और असाइनमेंट जो है, क्विज 2 और असाइनमेंट 2 अटेम्प्ट कर लेंगे और अपने साथियों को भी बताएंगे कि वो लाजमी अटेम्प्ट कर लें। पहली अटेम्प्ट जो है वो एज सून एज पॉसिबल कर लें। देयर आर 2 अटेम्प्ट्स और इंस्ट्रक्शन को ज़रूर रीड कर लीजिएगा और टॉपिक्स जो है वो मैं आपको असाइन करके थोड़ी देर में भेज रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ सर। अस्सलाम वालेकुम सर।